آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے، اور میں درخواست گزار ہوں بہت ہی علمی اور سماجی حوالے سے، قانونی حوالے سے ایک اہم شخصیت جناب بیرسٹر رشید مرزا صاحب سے کہ وہ آج کی اس خوبصورت محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ جناب بیرسٹر رشید مرزا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صدق اللہ مولانا۔ Very brief translation of the verse which I chose to recite is very important for all of us. It is that indeed those who are Muslim men and Muslim women, who are believing men and believing women, who are truthful, who are obedient men and obedient women, who are truthful men and truthful women, who are steadfast men and steadfast women, who are God-fearing men and God-fearing women, men who give charity generously, and women who give charity generously, men who observe fasting, women who observe fasting, men who guard their privates, women who guard their privates, men who remember Allah a lot, women who remember Allah a lot. There is the promise of your Lord with them, O Prophet Muhammad, peace be upon him, that not only that I will forgive them their sins, but also I will reward them with great rewards. Thank you. جزاک اللہ شیخ مرزا صاحب، بہت شکریہ۔ حاضرین گرامی، آج کی یہ مجلس بنیادی طور پر صرف ایک گیٹ ٹوگیدر ہے، مل بیٹھنے کا بہانہ ہے، اور آج کے میزبان جس طرح آپ کو پتہ ہے راجہ اشتیاق صاحب بہت ہی سیاسی حوالے سے، سماجی حوالے سے ایک مقام رکھتے ہیں، اور حال ہی میں انہوں نے پاکستان میں کوئی 2.5-3 مہینے گزارے ہیں۔ اس دوران جس طرح کہ ابھی وہ بتا بھی رہے تھے، وہ کوئٹہ بھی گئے، بلوچستان بھی گئے، لاہور بھی گئے، دیگر شہروں میں بھی جاتے رہے، بہت ساری اخبارات کو انٹرویوز بھی دیے، اور سیاسی سماجی تقریبات میں بھی شریک ہوتے رہے۔ تو چونکہ جو بھی پاکستانی ہم ادھر رہتے ہیں، اور ہم لوگ یہاں سے زیادہ پاکستان کے حالات کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، اور اکثر ہماری جو ڈسکشن ہوتی ہے جب بھی مل بیٹھتے ہیں تو پاکستان کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو راجہ اشتیاق صاحب نے آج آپ تمام دوستوں کو اس لیے بلایا ہے کہ جو ان کا ریسنٹلی کا دورہ انہوں نے کیا ہے اس کے بارے میں یہ خود آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، لیکن اسی دورے میں ان کے ساتھ ثاقب صاحب بھی تھے اور چودھری شہزاد کریم صاحب بھی تھے۔ تو میں ان سے پہلے گزارش کروں گا چودھری شہزاد کریم صاحب سے کہ وہ اظہار خیال فرمائیں۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں راجہ صاحب پہلے چلے گئے تھے، میں تو بعد میں گیا، ان کو لاہور میں ان کی مہربانی کہ یہ آئے، اور کافی دوستوں سے ادھر ملاقات ہوئی، گیٹ ٹوگیدر ہوا۔ پاکستان کے حالات جس طرح ابھی سب نیوز پیپر میں، میڈیا میں ہے، اتنے برے نہیں ہیں جتنا کہ ہمیں وہ نظر آ رہے ہیں یا دور بیٹھے ہوئے۔
لگ رہا ہے کہ ایسے حالات ہیں، مایوسی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ راجہ صاحب گئے ہیں، پورے پاکستان کا انہوں نے دورہ کیا، اپنے دوستوں سے ملے، احباب سے ملے، کمیونٹی میں ٹائم گزارا، انہوں نے گیٹ ٹوگیدر کیا ان سے، اور ان کو پتہ چلا کہ وہ لوگ ابھی بھی بڑے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پازیٹیو تبدیلی آئے گی، حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اسی طرح لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی امپروو ہوگی، کوئی قتل و غارت گری نہیں ہوگی یا تھم جائے گی۔ اور لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ان لوگوں کے ساتھ بھی رابطہ، کانٹیکٹ مستقل بنیادوں پہ ہونا چاہیے۔ جو کچھ میں نے ادھر دیکھا یا جو میری انفارمیشن یا میری ایک تجویز تھی کہ ہم میں سے جو بھی دوست پاکستان میں جائے تو ان کو ہمارا جو ایک پلیٹ فارم ہے، بڑا ایک نام والا ہے، بڑی اس کی ریسپیکٹ ہے، قائد اعظم ٹرسٹ، تو اسی پلیٹ فارم کے ساتھ، اسی پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں کمیونٹی میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے کانٹیکٹس میں اس پلیٹ فارم کے ریفرنس سے ملنا چاہیے اور ان کو موٹیویٹ بھی کرنا چاہیے۔ جو وہ پاکستان میں رہ کے تھوڑی بہتری کے لیے کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں، اور ہمیں بھی اپنے جو ہم اس میں پارٹ اپنا پلے کر سکتے ہیں، رول پلے کر سکتے ہیں، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ ان کو امید بھی دلائیں، اور اوبیسلی ہم یہاں سے، ہمارے پاس وسائل ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں ان کے دکھ درد میں شامل ہوں، ان کے تکالیف کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہمارا ان سے مستقل بنیادوں پہ رابطہ ہو، چاہے یہاں سے فون پہ ہو۔ اگر ہم ادھر جائیں تو ہر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر دوست کے ساتھ وہاں ملاقات ہو، اور ہمیں ان کے مسائل، ان کے معاملات کو سمجھنے کا بھی موقع ملے گا، اور ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مل بیٹھ کے ہم اس کا کوئی سلوشن حل کر سکیں۔ پولیٹیشنز کو بھی جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان کو اپروچ کریں، چلیں وہ عمل نہ کریں، لیکن ہماری آواز جو ہے ان ایوانوں تک پہنچنی چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔ حاضرین گرامی، جس طرح کہ آپ بخوبی آگاہ ہیں، راجہ اشتیاق صاحب کا ایک طویل سیاسی اور سماجی سفر ہے۔ اس دوران مسلم لیگ نون کی برطانیہ میں بنیاد انہوں نے رکھی، برطانیہ اور یورپ بھر میں ہر جگہ پر جا کر انہوں نے مسلم لیگ کو منظم کیا، مسلم لیگ کا میں بھی رہے، حکومت پاکستان میں کمیونٹی ویلفیئر ایڈوائزر بھی رہے، لیکن اس ساری ان کی جو بھی ایک مصروف زندگی تھی سیاسی اور سماجی حوالے سے، اس میں ایک چیز جو انہوں نے گین کی، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر رشید مرزا صاحب جیسے دانشور لوگوں کی مشاورت سے اور آپ تمام احباب کے بھرپور تعاون سے انہوں نے اپنے آبائی گاؤں میں ایک تعلیمی ادارہ بنایا ہے، انوار مدینہ ماڈرن کالج، اور ماشاءاللہ گزشتہ 10 سالوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ان کا ادارہ بھرپور طور پر کام کر رہا ہے۔ وہاں سے جو بچے پڑھ کر نکلے ہیں وہ مختلف اداروں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کا جو جانے کا بنیادی مقصد بھی تھا وہ ہی تھا، کیونکہ مارچ میں رزلٹ آتے ہیں تو اس کو انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ ایک بروشر بھی بنایا، ایک میگزین بھی اس کا، وہ بھی آپ کو دیا جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ میں راجہ صاحب کو کہوں کہ وہ آپ سے اظہار خیال کریں، میں گزارش کروں گا جناب ثاقب صاحب سے، کیونکہ وہ بھی پاکستان میں رہے ہیں اور پاکستان کے بارے میں بہت درد دل رکھتے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ وہ بھی اظہار خیال فرمائیں۔ جناب ثاقب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معززین مجلس، شرکاء محفل، ہماری کسی جگہ پر ملاقات ہوئی تھی 20 مارچ کو، اور 23 مارچ کا جو دن تھا اس کو ہم نے، کیونکہ راجہ صاحب نے چلے جانا تھا اس دن، اور 23 مارچ کی جو تقریبات تھی وہاں پر انہوں نے اس میں شرکت کرنی تھی، اس لیے تھوڑا سا پہلے اس کا انعقاد ہوا تھا اور اس میں ہم سب حاضر ہوئے تھے۔ اس میں ہمارے کونسلر صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ تو
तो उसी मजलिस में ही मुझे भी मालूम हुआ कि राजा साहब पाकिस्तान तशरीफ ले जा रहे हैं। इससे पहले कई दफ़ा मैं जब गया तो मेरे दिल में ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि राजा साहब ने गुजर खान ने जो इदारा कायम किया है उसका तारुफ मुझे इनके बुकलेट्स और प्रॉस्पेक्टिव और सारी रिपोर्टों से तो था, लेकिन मैंने उसकी विज़िट नहीं की थी। तो फिर यहीं पर ये तय पाया कि ये वहाँ पर मुलाकात हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 25 मार्च को यहाँ पर 23 मार्च की जो तकरीबात हैं वो अल-हिजरा में हुई और उसके बाद 25 मार्च को वहाँ पहुँचा और फिर जाकर के राब्ता किया तो राजा साहब गुजर खान में थे, इसलिए मैं हाजिर हुआ अनवार मदीना देखने के लिए। तो ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान में अगर आप स्कूलों की बात करें और इदारों की बात करें तो वो हज़ारों की तादाद में हैं, लेकिन बामकसद इदारे और पर्पसफुल इदारे, मीनिंगफुल इदारे वो बहुत कम है। तो मैं हाजिर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत थोड़े वक्त में इस तरह से इस्तकबाल फरमाया और तकरीब हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि राजा साहब की शख्सियत हमाजहत शख्सियत है, सियासी भी हैं, समाजी भी हैं, तालीमी भी है, रिफाही भी है, हर फील्ड में ये प्रोएक्टिव हैं, सरगर्म हैं, हमतन मसरूफ़ है। हमारी तरह नहीं, मेरा तो सिर्फ फोकस A to Z, नो डाउट पाकिस्तान से मोहब्बत और ख़ास कर बलूचिस्तान के साथ अटैचमेंट, ये कोई दो ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता कि किस तरीके से लोग कहते हैं ये कहाँ से हुई, कैसे आपने ये ली। ये इक्तसाबी नहीं होती, ये वहबी भी होती है और अल्लाह की अता भी होती है। तो ये तो सही है, लेकिन हम सिर्फ फोकस कर रहा हूँ मैं एजुकेशन पर, और एजुकेशन का मतलब भी ये है, उसमें भी एक तसव्वुराती तख़य्युलाती ड्रीम और तसव्वुर हो सकता है और एक अमली हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर एक चीज़ है एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, मैं ये समझता हूँ कि नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा मुल्क जस्ट तालीम में बहुत पीछे है, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। और हमारी हुकूमतें पिछले 68 साल में उन्होंने तालीम को तरजीह, तो एक बात है, तरजीह तो बहुत बड़ी बात है, मसावी जो उसके हुकूक थे वो भी बहुत बड़ी बात है। कोई निस्बती हिस्सा भी दिया होता तो कुछ बात कही जा सकती, यानी 2% से भी कम जिस मुल्क का कि GDP का बजट हो तालीम के लिए, वहाँ पर तालीम क्या करेगी। तो मुझे जो समझ में आ गई है बात वो ये है कि हुकूमत ने अपने कंधों से ये जिम्मेदारी उतार करके फेंक दी है ज़हनी तौर पर, और इस फील्ड को चरागाह के तौर पर खुला छोड़ दिया है। इसमें अमेरिकन आ जाएं, इसमें ब्रिटिश आ जाएं, इसमें जर्मन आ जाएं, इसमें कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी भूला भटका चला जाए तो चलो उसको भी मिल जाएगा, लेकिन ये चरागाह है, ये खुला है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। जो चाहे आकर के हमारे बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दे और उठा करके ब्रेन ड्रेनेज, अच्छा ब्रेन सारा उठा करके बाहर भी ले जाए, हमें कोई परवाह नहीं। ये एक मुझे एजेंडा नज़र आता है, खा वो मियाओं की हुकूमत हो या किसी और की हुकूमत हो, सब का एक ही एजेंडा है। और प्रोजेक्ट जो जिन पर तवज्जो है हमारी हुकूमतों की, वो हैं जिससे उनको क्रेडिट मिलता है सियासत के तौर पर। किसी को पसंद आ गई कहीं सैर करने के लिए
तुर्की में गए या फलां और जगह गए या मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई तो मैंने कहा कि चलो मैंने ये चीज़ लाहौर में बना दी। दूसरे का बस चला, उसने कहा मैंने ये चीज़ लाड़काने में बना दी। तीसरे ने कहा ये मैंने ये चीज़ मुल्तान में बनानी है। तो ये सारे का सारा स्टाइल है हमारा, जो मैं समझ पाया हूँ थोड़ा सा। मैं सियासत में तो थोड़ा है वो नहीं, लेकिन तालीम की बात हम कर रहे थे तो मोहतरम राजा साहब ने अपने इलाके के गरीब बच्चों के लिए जो इदारा बनाया उसमें इस्लामियत और पाकिस्तानियत बहुत अच्छे तरीके से मुमज़्ज़ज और कूट कूट कर भरी हुई। माशाअल्लाह तकरीब हुई जिसमें बच्चों ने तकरीरें भी की, तलावत भी की और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की मोहब्बत भरे तराने उन्होंने गाए, उससे ईमान ताज़ा हो जाता। और मेरा ये हकीर सा तस्वुर है या ख्याल है कि जब तक हम अपने इदारों से अलीगढ़ जैसे तालिब इल्म या इस्लामिया कॉलेज लाहौर जैसे तालिब इल्म या इस्लामिया कॉलेज पेशावर जैसे स्टूडेंट्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवर नहीं सकता। हमें मुलाजमीन तो मिल सकते हैं, हमें ब्यूरोक्रेट्स तो मिल सकते हैं, हमें हर काम हमारा उसी तरह से चलता फिरता रह सकता है, लेकिन कोई पायदार तब्दीली जिसके लिए हम सब तड़प रहे हैं वो तब्दीली नहीं आ सकती जब तक ऐसे स्टूडेंट्स ना आए। तो राजा साहब की तो बहुत ही हमागीर कोशिशें हैं, लेकिन हमारा थोड़ा सा जो प्रोग्राम ज़ियारत में है, जो मेरी सोच है बहुत ही छोटी सोच है, वो ये है कि हम पर्पसफुल स्टूडेंट्स और तालीम जो है उसका आगाज़ करें और उनके अंदर इंसानियत, इस्लामियत और पाकिस्तानियत कूट कूट कर भर दें। उनमें इकबाल और कैद आज़म इस तरह से रच बस जाए कि कोई उनके जहन से और दिमाग से उनकी सच्चाई को, उनकी फ़लसफ़े को निकाल ना सके। उनके अंदर तसव्वुर खुदी इकबाल का, तसव्वुर शाहीन इकबाल का और यकीन महकम, अमल पैहम, मोहब्बत फ़ात आलम, फ़क्र बूज़हर, कुव्वत हैदर, बाजुए हैदर, ये सारी चीज़ें उनके अंदर अगर हम भर दें, लेकिन उसके साथ साथ वो जब फारुग हो करके अपनी जगह पर मुलाजमत हासिल कर लें तो मुलाजमत हासिल करना एक अचीवमेंट है। कुरान मजीद में मोमिनीन को अल्लाह ताला ने सूरह सफ में फरमाया कि क्या मैं हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, कि क्या मैं तुमको एक ऐसा बिजनेस, ऐसा कारोबार ना बताऊं जो तुमको अज़ाब अलीम से बता दे। तो उसमें जिहाद की बात की, लेकिन आखिर में यह फरमाया कि दो खुशखबरियां इसके नतीजे में होंगी, एक इस दुनिया में फतह याबी, लेकिन साथ ही साथ आखिरत की कामयाबी। जो बच्चे हमारे ख्वाबो वाल हिजरा ज़ियारत से निकलें या अनवार मदीना से निकलें, अगर वो कामयाबी से किसी जगह पर खिदमात अंजाम देंगे तो इससे हमारी आंखें ठंडी होंगी कि हमारा एक मकसद अचीव हो गया कि एरेडिकेट पॉवर्टी थ्रू एजुकेशन, इनको हमने अपने कदमों पर खड़ा कर दिया। लेकिन जब तक इन बच्चों की कंट्रीब्यूशन इस मुल्क के लिए नहीं होगी, वी फेल्ड अनदर ऑब्जेक्ट। ये मेरी हकीर सी सोच है। इसी नुक्ता नज़र से हमने जो छोटा सा प्रोजेक्ट ज़ियारत में शुरू किया, उसके बारे में मोहतरम राजा साहब चूँकि ये तशरीफ़ लाए और मैं इनका बहुत एहसानमंद हूँ, और ख़ासकर अपने इब्रार साहब भी और यास साहब भी तीनों तशरीफ़ लाए, और वहाँ पर जाना और किसी को कन्विंस करना जुए शीर लाने के मुताबिक है। पहाड़ों से, हिमालय से जुए शीर लाना आसान होगा जितना किसी को ये कन्विंस करना कि आओ हमने एक इदारा बनाया है ज़ियारत में पाकिस्तान में, उसको आकर के देख लो प्लीज़। नहीं, कोई नहीं जाने देता। हम कहते हैं कि इंडिया और CIA और मुसाद ने बलूचिस्तान को हमसे अलहदा करने का तहिया किया हुआ है और वो ऐसे इक़दाम कर रहे हैं।
उन्होंने पता नहीं किया हुआ है या नहीं किया हुआ या करेंगे। हमने उससे पहले, हमारे तीनों सूबों ने इससे पहले बलूचिस्तान को डिस्कनेक्ट कर दिया है। हमारे जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं इन्होंने भी कर दिया है ज़हनी तौर पर। हमारे मीडिया का ये क्राइम है, ये रियल क्राइम है कि उन्होंने इतनी हाइप क्रिएट की है कि कोई आदमी बलूचिस्तान कोयटा उसको अपने मुल्क का हिस्सा समझते हुए जाने के लिए तैयार नहीं। तो ये तशरीफ लाए, मैं इनके लिए बहुत ही एहसानमंद भी हूँ, शुक्रगुजार भी। लेकिन उसका सिर्फ फिलॉसफी ये है कि एक तो हम कहते हैं कि हमारे पास हम यहाँ पर एक डिसाइड 10, 15, 20 आदमी बल्कि पूरे बर्मिंघम के साहिब हैसियत लोग भी अगर हम बैठ कर के फैसला करें कि हमने पाकिस्तान के उन गरीब बच्चों को जो स्कूल नहीं जा पा रहे, हमने एक खैर का पहलू सोचते हुए उनको तालीम दिलवानी है, तो हम सब उन सब को अकोमोडेट नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसलिए कि हमारी हुकूमतों की जो गफलत है वो इतनी ज्यादा है कि इस वक्त 4 करोड़ के करीब बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे। हम उन 4 करोड़ को तो नहीं कर सकते अकोमोडेट, लेकिन मेरी सोच ये है कि आप अगर 10 को कर सके तो उसके बारे में ये सोचे कि उसको पर्पजफुल दोनों नुक्ताए निगाह से, एक उनको अपने पांव पर खड़ा कर दें और वो इस लिहाज से मुल्क की खिदमत करे, दूसरा वो मुल्क से बाहर भागने के तसव्वुर से पाक हो बल्कि मुल्क की खिदमत करने के जज्बे से सरशार हो, और तीसरा ये है कि उसके अंदर इंसानियत अच्छा इंसान और इस्लामियत अच्छा मुसलमान और पाकिस्तानियत अच्छा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी वजूद में आ जाए। उसको ना कोई रिश्वत पर मजबूर कर सके, ना करप्शन पर मजबूर कर सके और ना ही बेरहरवी पर मजबूर कर सके। अगर हम इस एहतमाम के साथ उन 10 बच्चों को सिर्फ मैट्रिक से नहीं, सिर्फ FSC से नहीं, यूनिवर्सिटी से नहीं, उसके बाद तक एहतमाम के साथ उनके साथ कनेक्शन में रहें और इस चीज का एहतमाम करें कि इस तरह के हमने नेटवर्क्ड जनरेशन तैयार करनी हो जिनके जहन में अलीगढ़ के स्टूडेंट्स वाली स्पिरिट हो, इस्लामिया कॉलेज पेशावर और लाहौर वाली स्पिरिट हो, तो फिर हम ये तसव्वुर कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, दुआ के साथ साथ ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये थोड़े लोग भी अल्लाह ताला उनको अगर बाहिम्मत बना दे तो फिर इंशाअल्लाह ये मुल्क की जो नैया है, कश्ती है, उसको किसी किनारे पे लगा देंगे। हमने बलूचिस्तान की बुनियाद, उसके सिस्टम की बुनियाद इसी बुनियाद पर रखी कि सबसे ज्यादा गड़बड़ बलूचिस्तान में है तो हम हर जिले से एक गरीब बच्चा लेते। हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि हम हर यूनियन काउंसिल से एक गरीब बच्चा लें, लेकिन हमारा तस्वुर ये है कि अगर अल्लाह ताला के नेक बंदे बर्मिंघम में बैठे हो, इस वक्त तक हमारा बजट उसका 2 लाख पाउंड सालाना है, तो इसका मतलब है 200 बच्चे हमारे हैं, एक बच्चे का खर्चा 1000 पाउंड। अगर अल्लाह ताला हमारे साथ अच्छे लोगों को खड़ा कर दे तो फिर हम तहसील लेवल पर एक एक बच्चा लेना शुरू कर दें। अब गुज़श्ता 10 साल में अगर हमने हर जिले से एक एक बच्चा लिया तो हर जिले में 10 बच्चे पॉजिटिवली हो गए। उनका एक अपना पॉजिटिव ग्रुप भी बनता जा रहा है, जो अच्छे मुसलमान भी हैं, अच्छे पाकिस्तानी भी हैं और अच्छे इंसान भी हैं। और हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि जो मैसेज हम उनको दे रहे हैं पूरा खर्च करके वो डायलूट हो जाता है बाजू का, जिस किताब इस माहौल से निकल करके कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाते हैं। हमने ये ख्याल करना है कि डायलूशन कम से कम हो। अगर 90% डायलूशन है तो इसका मतलब है कि 10% मैसेज रह गया, लेकिन अगर 10% डायलूशन है तो 90% मैसेज बाकी रह जाए तो उसमें ज्यादा आपके पास उम्मीद है। इसको डायलूशन को रोकने के लिए हमने अल हिजरा में एक एनुअल अलुमनाई गैदरिंग का एहतमाम किया हुआ है, जिसमें सारे बच्चे जो पढ़ करके चले गए हैं, इस वक्त यूनिवर्सिटियों में हैं, हर साल अगस्त में वापस आते हैं और वो अपने मसाइल भी शेयर करते हैं और अपनी अचीवमेंट्स भी शेयर करते हैं। और साथ में हम शेयर करते हैं
کہ وہ جو میسج آف چینج ان دا فیوچر وہ ہے، وہ کہیں بالکل ڈراپ تو نہیں ہو گیا. اگر ڈراپ ہو گیا تو اس کا مطلب میری چابیاں گم گئی تو میں گھر کیسے داخل ہوں گا، میں آفس میں کیسے داخل ہوں گا، میں کار میں کیسے داخل ہوں گا. تو ڈراپ از اے ویری ڈینجرس. ڈائلوشن could be met. So that's how we are doing it in زیارت. اور اس کی زیادہ تفصیل جو ہے ہمارے ساتھی انشاءاللہ کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو ادارے ایک انوار مدینہ اور اسی طریقے سے الہجرہ زیارت، اگر یہ ایک دوسرے سے سیکھنا شروع کریں گے تو وی ول امپروو. جس چیز بے انوار مدینہ ہم سے اچھا کام کر رہا ہوگا الہجرہ اس سے سیکھے گا. اور اگر کسی انداز میں الہجرہ میں کوئی ایسی چیز ہو جس کو انوار مدینہ اپنا سکے تو انوار مدینہ کے لیے کھلا ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنائے، تاکہ ہم مل جل کر کے ایک نئی نسل ایسی پیدا کریں جو باعزم بھی ہو اور متحرک بھی ہو، فعال بھی ہو، محب وطن بھی ہو. جزاک اللہ. ہم نے جی جو برطانیہ میں کام کیا پچھلے چند سال، اور جو پاکستان میں ہم کام کر رہے ہیں وہ اس میں ہے. اور جو ہم مختلف جگہ مختلف اداروں میں ہماری ملاقاتیں، میٹنگیں، وہ تمام چیزیں جو ہمارے پاس اویلیبل تھیں یہاں پر ہیں. یہ ابرار مول کی بہت مہربانی ہے، اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس میں، اسپیشلی فوٹوگرافی میں. تو ہمارے نیو الیکٹڈ لارڈ میئر شفیق شاہ صاحب آنے والے ہیں. ابرار کتنی کے ذریعے ہے پہنچنے والے. بیفور وہ کم، آج کی جو میں نے آپ کو تکلیف دی ہے، زحمت دی ہے، کوئی تقریب کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، صرف گیٹ ٹوگیدر گپ شپ لگانا ہے. ایک نمبر 1. اس کے ساتھ جو اصل پوائنٹ ہے وہ ضروری ہے کہ پاک فوج نے جو آپریشن شروع کیا اور جس مسائل سے گزری، اس پاک فوج کی، برطانیہ کے برٹش پاکستانی اس کی حمایت کرتے ہیں. اور ہم اسپیشلی سارے اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی پاک فوج کو ہم میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر چیز کے لیے. اور وہ آتے ہیں ون بائی آتے اس پر آتے ہیں. کھڑک صاحب سب سے پہلے میں خود ہی کھڑک صاحب سب سے پہلے یہ دیکھیں، اس سے آپ کو ایک لیڈرشپ کی فیوچر نظر آئے گا، ایک لیڈرشپ کی سوچ. اور اس کی آپ دیکھ لیں، ہم مندر میں گئے بلوچستان میں، ہم گردوارے میں گئے لاہور میں، ہم چرچ میں گئے لاہور میں، ہم داتا صاحب گئے لاہور میں، ہم بادشاہی مسجد گئے، اور تمام مندر، مسجد، گردوارے تمام اس میں شامل ہیں. بارشی صاحب جی میں دیکھ رہا ہوں بلوچستان کا پیج ہم نے 2 سیپریٹ بنائے، آپ دیکھ لیں، بیوٹیفل. اور یہاں کی جو ہماری کارکردگی ہے وہ بھی دیکھ لیں. ایک اسپیشل سکول ہے، اسپیشل نیڈ سکول کھاریاں، کیا نام ہے اس روڈ کا، گلیانہ روڈ، کھاریاں. ہمیں لاہور کسی نے بتایا، چودھری تنویر صاحب نے، کہ ایک اسپیشل سکول ہے. ہم اسپیشل کھاریاں گلیانہ سکول پہ دیکھ لیں گے. یہ اسپیشل نیڈ کا ہے، جو جتنے بچے نا اسپیشل نیڈ، یہ ان کے لیے ہے. یہ سید بادشاہ ہے جس نے بنایا، کمال کر دیا اس نے. یہ آپ سے میری ریکویسٹ، میں اپنے سکول کی بات نہیں کروں گا، میں قوم کے سکولوں کی بات کروں گا جن جن لوگوں نے پاکستان میں کام کیا. اگر آپ کو کھاریاں گلیانہ روڈ کبھی جانا ہو تو یہ سکول کا ضرور وزٹ کریں. نمبر 1. نمبر 2، میں اپنے سکول کی پھر نہیں بات، الہجرہ سکول جو زیارت میں ہے بلوچستان میں، ثاقب صاحب نے جو کام کیا، اور جیسے وہاں پر الہجرہ کا سٹارٹنگ کی 2004 میں یہ ناممکن تھا، یہ ممکن تھا ہی نہیں، اور انہوں نے ممکن بنایا اس کو. میری تمام دعائیں اور میری ہر قسم کی انشاءاللہ بلوچستان کے ان بھائیوں اور بہنوں سے اور ان بچوں سے ہیں. ہر وقت میں آپ کے ساتھ ہوں، ہر لمحہ میں آپ کے ساتھ ہوں. زبانی کہانی آپ جانتے ہیں، ریاض شاہ صاحب موجود ہیں شفیلڈ میں. فرائیڈے ہمارا دوستوں سے میٹنگ جب ہوئی ہے
तो उन्होंने कुछ लोगों ने एतराज़ किया। मैं कहा सुनो, तुम बड़े शौक से कहते हो कि वो बलूचिस्तान वहाँ के लोग कि मसाइल हैं, वो बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं ना, पर क्या आप 10 पाउंड उनको नहीं दे सकते साल में? 20 पाउंड आप नहीं अगर दे सकते तो क्या उनके मसाइल हल करेंगे आप? क्या बलोचियों के आप मसाइल हल करेंगे? बलोची हमारे भाई हैं। ये पहली दफ़ा 6 लोग हम बर्मिंघम से गए हैं। ये इब्रार मुगल जिस दिन जाना था उस दिन सुबह इसने कंफर्म किया, 1 हफ्ता मगर में से लगा रहा हूँ, ये मान नहीं बना सका। ये इजाज साहब को मैंने बोला यार खुदा के लिए अगर मुझे कुछ हो गया तो तू पीछे खबर देते हैं यार, तू मेरे साथ चल। बिलीव मी, ये सारी सोचे हम लेकर के बलूचिस्तान में जो हमें इज्जत प्यार मोहब्बत मिली 3 दिन में, आप सोच, इट इज ऑल देयर। इट इज हम मेरी 3 जगह पर बुकिंग है। साथ साथ बैठे हैं मेरे दोस्तों ने, मुझे वो पता ही नहीं था मैं कहाँ था। 3 जगह मेरी बलूचिस्तान में बुकिंग होगी। हम बलूचिस्तान में रात के 1:30 बजे एडिशनल IG कैप्टन आबिद साहब को हम मिले। रात के 1:30 बजे उन्होंने बुलाया, इब्रार साहब आप साथ में थे, ये फोटो उनका लगा, ठीक है जी। हमें तमाम वहाँ पर कोयटा क्लब में, कोयटा ऑफिसर क्लब में तमाम फौजियों को मिले। फौजियों के फोटो हमने नहीं दिए जी। हम बड़े बड़े लोगों को मिले। ये बता दें आपके जिनको कुछ लोगों को फोटो यहाँ पर किसी वजह से मजबूरी से नहीं हमने दे सके। सबसे बड़ी बात जो ये बैठे मेरे भाई उबैद खान साहब, इनके भाई वहाँ हमें मिले बलूचिस्तान में। हमने घर के होटल के ऊपर छत के ऊपर बैठ कर वो सजी बोलते सजी खाई, कोई खतरा नहीं था। शहरों में फिरे, रात को फिरे, हमें बड़ा मजा आया। और इनके भाई यहाँ जैसे ये बैंक के माशाल्लाह हेड है, वो नेशनल बैंक के बलूचिस्तान के हेड है, वहाँ पर उनको हम टाइम थोड़ा ही दिया हमने। मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ। बलूचिस्तान में हम सरदारों के घर गए, वजीरों के घर गए, ओपन असेंबली में गए, रात को गए, किसी ने नहीं रोका, कोई खतरा नहीं। हमारे पास कौन सी गाड़ी थी आप बताएं? महरान क्या थे? महरान वो जिन्हें 2 डोरा ऐसे है जी, सुजुकी कार जी, उसकी हालत थी आपको पता है ना। हम उसमें गए जी, कोई खतरा नहीं, किसी ने नहीं हमें कहा खतरा नहीं। वो अल्लाह के हम जियारत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की राजगाह पर गए, वहाँ पर अब हमने देखा वो ठीक हो गई इंशाल्लाह 14 अगस्त को ओपनिंग होगी। पर जो अल इजरा में हमने देखा, जो बच्चे देखे, जो उनका शऊर देखा, जो शौक देखा, और कम से कम 1500-2000 ऑडियंस थी, लोग थे वहाँ पे। उनको हमने जब खिताब किया, बड़ा अच्छा मौसम था जी, बड़ा ठंडा ठंडा, बड़ा प्यारा बारिश था, और अक्सरियत पख्तूना की थी। हमने अला चला दिया उनको। हमने कहा यार हम 6 लोग पाकिस्तानी बर्मिंघम से आए हैं, यहाँ पर हमारा तल्लक नहीं था, पर हमारा बलूचिस्तान है, तो आप लोग खुदा के लिए आप लोग इकट्ठे हो जाए। हमने आले हदीस के मरकज में गए, ये देखे शायद ये आपके सामने आले हदीस का मरकज है, हम वहाँ पर गए, उनको डिटेल दी। सब पाकिस्तानी हैं, सब मुसलमान हैं, तब आप कामयाब होंगे। कोई आले हदीस नहीं, कोई सुन्नी नहीं, कोई बरेलवी नहीं, कोई शिया नहीं। इन चीजों ने मार दिया, गर्क कर दिया। अल्लाह ने वास्ते, खुदा के वास्ते, जब आप 20-50 लोग ठीक नहीं होंगे, बाहर वाले 100 नहीं होंगे। आप सबको एक नजर देखें। अहले हदीस वाले ने हमारी कितनी इबरार की, हमारे यार अहले हदीस के पाकिस्तानी तो है ना, हिंदू है हमारे, हिंदू है पाकिस्तानी है, सिख है हमारे पास। हम क्रिश्चियन के पास गए, वो भी आपने चर्च, वन ऑफ द बेस्ट चर्च है लाहौर में, जो पूरी बर्मिंघम में नहीं चर्च। अल्लाह ऑफ कोर्स हम उधर विजिट किया, देखा, मैंने कहा यार ये शो करो कायदे आज़म का। और हमने देखे इसके ऊपर कायदे आज़म की कोटेशनें लिखी हैं। लोग कहते हैं अमल नहीं करते, हमने तालीम का काम करके दिखाया। बारिश साहब ये यहाँ देखे, यहाँ पर हमने अपने स्कूल के जो 20 बच्चों की लिस्ट दी है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल है कि जो हमने 20 बच्चों को कहाँ कहाँ पढ़ाकर इस फेडरल बोर्ड के सर्टिफिकेट की वजह से ये यहाँ पहुंचे। हमने ये किया। हमने आप तमाम दोस्तों को इज्जत दी है, इसमें तमाम दोस्तों को इज्जत दी है, अपनी मेहनत अपनी खर्चे पर आपको दी है। आप पाकिस्तान को इज्जत दो बस। सुभान अल्लाह। डोंट गिव मी, डोंट गिव टू बारिश रशीद मिर्जा। क्या बात है आप हम लोगों, क्यों नहीं? हमने अपनी तंजीमें सरेआम कर दी हैं, लोगों को बता दिया कोई मामे चाचे का ताए का बच्चा नहीं है। गिव देम चांस, लेट देम कम फॉरवर्ड। क्या हो गया तुम लोगों को? लुक एट दिस, सिंधी, बलोची, पख्तून, कश्मीरी, पंजाबी, पाकिस्तानी, लुक एट दिस। कोई तंजीम है ये जी बताएं मुझे, किसी तंजीम का ऐसा काम है तो बताएं मुझे, हम उसको सलाम करेंगे। बाहर निकलें। आज मैं उस पेज पर, कल आप होंगे,
اس کے لیے فراخ دلی چاہیے, اس کے لیے جرأت چاہیے, ایمان چاہیے, مضبوط ایمان چاہیے. رشید مرزا مضبوط, ہر آدمی کو ایک نظر سے دیکھیں. یہ کام تام ہوتے ہیں رشید مرزا. ہم نے اب جو 23 ثاقب صاحب جو پروگرام ہم نے اس ہوٹل میں کیا تھا وہ یہاں لگا دیا, ہم نے پورا پروگرام لیا. یہ یہاں جو ہم 20 کو کر کے گئے پیراگون میں کیا, نہیں یہاں پیراگن والا لگا ہے, پیراگن والا لگا ہے. یہ ہمارا جو لاسٹ یہ بھی لگا ہے. یہ ہماری جو دوسری تنظیم ہے, جو سب سے بڑی تنظیم ہے, پاکستانی کمیونٹی ڈیولپمنٹ نیٹ ورک. لوگ آپ صادری صاحب, ہم نے ان لوگوں کو دیکھو, ہر آدمی انگلش بولتا ہے. ادھر سے میری بات سنیں, ہر آدمی میڈیا کو فیس کر دیتا ہے. ہر آدمی جو ہے نا یہاں پر, ادھر کوئی چاچے تائے کا پتر نہیں ہے, ادھر کوئی ان پڑھ جائل نہیں ہے میری طرف. یہاں پر نہیں, بات سنیں, میں ہو سکتا ہوں, بارشی صاحب ان لوگوں کو موقع دیں, اس قوم کو آگے کریں. کون کرے گا؟ بہت بڑی بات, آپ نہیں کرتے. یو ڈونٹ ڈو اٹ. کہتے یا میں میری فرقے کا آ جائے, میرے علاقے, وائی ناٹ. یہ سب چیزوں کو ختم کرو, دفن کر دو, تب آپ پاکستان کی بات کریں گے. اگر آپ خود برمنگھم میں 100 آدمی شاہ جی کٹھے نہیں ہو سکتے تو وائی یو بلیمی پاکستانی. سید بادشاہ بولے کمان, ہم بتاتے ہیں اس برمنگھم قوم کو, پوری قوم کو بتاتے ہیں, یہ ہم لے کر جائیں گے. ہم نے بریڈ فور اس دن گئے, ان لوگوں نے اس چیز کا اپریشیٹ کیا, انہوں نے کہا ہم اس پر عمل کریں گے. ہمیں آپ نے جگا دیا, آپ نے بتا دیا بلوچستان بھی ہمارا ہے, خیبر پختونخوا بھی ہمارا ہے, سندھ بھی ہمارا ہے, کشمیر بھی ہمارا ہے. ہم تو صرف ایک جگہ لگے تھے, جہاں پنڈی لگے تھے, جہاں میرپور لگے, جہاں جہلم لگے. یہی ہماری ہے. ملا کی دوڑ کہاں ہم سیدھی تک, ہم وہاں تک تھے. نو, آئی ٹیک نوٹ دیٹ. آئی ٹیک ملا کو ہم باہر لے گئے. میرے بھائیوں بزرگوں سنو ذرا, تسی شاید بور ہو جاؤ. دال روٹی بہترین بنائی نہیں, کہا بہترین نہیں. میں تو دل لیے گل کہہ رہا, میں آج آیا کل نہیں ہوں گا. آپ صادری صاحب ان مولویوں نے لوگوں کو آخو کہ لوگوں کو کیا کرو. آج یہ آپ کے اسکولوں کو ڈیفینڈ کر سکتے. دس مائی ٹیم, نو بڈی ایل ان برمنگھم. آئی کین پرامس یو کہ کیوں ایجوکیشن ہے, ہر وقت میڈیا میں, ہر وقت دفتر میں, ہر وقت انٹرنیٹ میں, ان کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. تم نے وہ لوگوں کو بنا دیا سربراہ مشتوں اسکولوں کا جن کو اللہ بے نہیں آتا, جن کو ککھ نہیں آتا. صرف میرے مامے نہ پتر ہے, یہ میرے تحصیل کا ہے. یہی بات ہے یا نہیں؟ آج بیڑا کار کو ادھر بھی کر دیا, ادھر بھی کر دیا. یہی بات ہے. میں نے کل کہا, میں نے کل تکبیر ٹی وی پر کہا, میں کہا پاکستانی قومی حکومت نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت قومی حکومت نہیں ہے. کون سی حکومت ہے؟ خاندان کی حکومت ہے, لاہور کی حکومت ہے. میں نے کل کہا سر اس کا آواز کون اٹھائے گا؟ اس کا آواز راجہ ظفر الحق صاحب سے میاں محمد نواز شریف صاحب نے سوال کیا. راجہ صاحب یہ بتائیں کہ لوگ کہہ رہے کہ یہاں پر آپ کے اپنے لوگ بہت زیادہ حکومت ہیں, تو انہوں نے کہا بالکل درست, اٹس اے فیکٹ کہ آپ کے اپنے لوگ زیادہ ہیں. اس لیے آج یہ حکومت جو اس کے پاؤں نہیں لگ رہے. کتنے لوگ اس میں کے پی کے, کتنے لوگ ہیں بلوچستان کے, کتنے لوگ ہیں سندھ کے. وہ دوسرے کسی کو سنیں دیکھیں, یہ آپ لوگوں کو باہر نکل کر بولنا ہوگا, بتانا ہوگا. اب بات رہی ایک اور, اس وقت میں نے کہا جی ملا, میڈیا اور پولیٹیشین, تین پارٹیاں پاکستان میں. یہ تین ہمیں گھر کریں کر سکتے ہیں, ہمیں آگے لے جائیں آگے لے سکتے ہیں. میڈیا ہوا ہے, پیسے لائی جاؤ, تماشا دیکھ جاؤ. جو میں دیکھا ہوں, میں مجھ سے بہتر معذرت رال ود ڈیو رسپیکٹ آپ سے کوئی نہیں جانتا کہ میں ان جڑوں ہر جگہ گیا ہوں. میڈیا ان کل پرسوں کا جو چھوڑ دیکھتے ہیں, جو مال لگا ہوا ہے, انڈا مال لگا ہے. اگلی بات سنو سر, ملا میڈیا جو مال لگائے گا عوام کا ہوگا پیسہ, سیاستدان جو لائے گا کرپشن کا پیسہ ہوگا. پیسہ نقصان قوم کو نقصان ہوگا. Is that right or not? Of course, میں دیکھ رہا ہوں راجہ, میں کیڑی جگہ نہ گیا, کس آدمی سے نہ ملا جو ٹاپ کلاس کے پاکستان کے لوگ ہیں, ان کے نام اس بندے کو پتا ہے, اس کے فوٹو نہیں ہے یہاں پر. اچھا کیا سمجھے کہ نہیں؟ میں ڈائی میں نہیں رہا ہوں, ایک دن قسم چوا کے لیے میں کار بیٹھ کر سوڑ گیا, لیٹ کر. میں نے پورے پاکستان کا دورہ کیا. میں نے علی پور سیدہ میں گیا ہوں, رات کے 2 بجے گیا ہوں, وہاں عرس پر گیا ہوں. جتنی دنیا وہاں علی پور سیدہ میں نے عرس پر دیکھی, پورے پاکستان میں نے دیکھی. یہ بتا دوں آپ, میں نے ایک سنیں, میرے جذبات رسول ہے, میں اپنی بات آ رہا ہوں. یہ میرا پاکستان ہے, یہ تیرا پاکستان ہے. یہ پٹھان بھی میرا, بلوچی بھی میرا, یہ پختون بھی میرا, سندھی بھی میرا ہے, یہ کشمیری بھی میرا. یہ
सोच इसको है, इसको हमने क्या कायदे आज़म ट्रस्ट, नो मोर, एक लफ्ज सियासत का नहीं है इसमें, एक लफ्ज सियासत का नहीं है। अगर आप एजुकेशन से तल्लुक रखते हैं, ये खत पढ़े वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हमने लिखा तालीम के बारे में, ये खत पढ़े मिनिस्टर के हाथ में मैंने खत दिया, इब्रार साहब वहां पर थे, इजाज साहब वहां पर थे हॉलीडेज में, ये खत पढ़कर पाकिस्तान के लोगों ने मुझे सलाम किया। अजीज अलवी नवाए वक्त का जो, उसने कहा राजा साहब आपने कमाल कर दिया, मिनिस्टर ने कहा हम ये पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे अमेंडमेंट के लिए। हमने कहा एक निज़ाम होना चाहिए, एक इंसाफ होना चाहिए, एक करिकुलम होना चाहिए, तब ये कौम बनेगी। 6 रोड पिंडी में एक तालीम, अगले रोड पर है और कुछ बढ़ा रहा है, उस पर आगे मौलवी और कुछ इकट्ठा खोला, उसके आगे और कुछ खुला है। नोबडी नो व्हाट्स हैपनिंग, नोबडी नो व्हाट्स हैपनिंग। पैसे मंगी जाओ, खाई जाओ, लाई जाओ, नोबडी वांट केयर। अच्छा आप इतने परेशान थे अर्लिया, राजा साहब इतने परेशान थे, ये पूछो किसी को पता ही नहीं पाकिस्तान है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? कराची का जो हादसा हुआ, मुझे यहाँ से फोन किया भाई साहब का, कराची हो गया, मैं हमें पता ही को नहीं यार, खुदा की कसम से उधर पता ही को नहीं किसी को। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान में बहुत सारी न्यू चीजें आ रही हैं, इसके बावजूद आज के हालात के बावजूद पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रही, पाकिस्तान में रोड वर्क ब्यूटीफुल बन रहा है थ्रू आउट बलोचिस्तान। पाकिस्तान आगे जा रहा है, पाकिस्तान पीछे नहीं जाएगा। नोबडी कैन स्टॉप दैट, नोबडी कैन स्टॉप दैट। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान में मोहब्बे वतन लोग हैं, पर गद्दार पाकिस्तानी भी है जो आज पाकिस्तान को लेट डाउन कर। गद्दार हो जो सीटों पर बैठे हैं, ये बता दो, जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, जो सेनेट में बैठे हैं, उनमें भी गद्दार लोग हैं, वही गद्दार। पर कौन बोलता है उनके खिलाफ? हम हर जगह जगह में बोला है, वहां पर प्रेस क्लब में जाकर मैंने, वहां पिंडी प्रेस क्लब में बुलाया, मैंने कहा बात करें, गोली लक्ष्य मरना तो है, मौत बाराक है, आज ही मरना, कल किसी काम के लिए किसी नाम के लिए मरोगे तो ना तो याद दुआ करेंगे लंबी लंबी। डॉक्टर साहब पहली शेर बात देखे, वो छोड़े उनको छोड़े, देखे इसमें हर आदमी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको ये सुन्नी शिया वाबी इस कल्चर से निकलना होगा। सुभान अल्लाह। गुड लक इफ यू आर शिया, गुड लक इफ यू आर सुन्नी, गुड लक इफ यू आर देवबंदी, गुड लक। ये तेरा मजहब है, तेरा और अल्लाह का मामला है, मेरा नहीं है। मेरा मामला स्टेट से है। एक स्टेट का अगर तू भी बानी है तो मैं भी बानी, अगर स्टेट को कुछ होगा ना तू रहेगा ना मैं रहूंगा। ये चीजें आपने इस कौम को देनी, ये शऊर देना है। एक मंथ लगा पूरा इसको बनाने के लिए, जब हम आखिर पर पहुंचे थे बिजली खत्म ऑफ हो जाती थी, तो फिर दोबारा शुरू। खुदा की कसम से बड़ा बड़ा मुश्किल से काम किया। मेरे दोस्तों देख लें, अंग्रेज की पूरी बर्मिंघम की आला क़यादत यहाँ मौजूद है। आज जिंदा कोई बताया बर्मिंघम में, अंग्रेज स्कूलों के यहाँ पर, पुलिस वालों के यहाँ पर, तमाम लोगों, ये बच्चों ने 12वीं सेकंड ईयर इसी नवारे मदीना से फारिग किया। 2014 ये फारिग हुए, और हमने बच्चों को इंशाअल्लाह अजीज, आपने देखा एग्जाम्पल 20 बच्चों का, ये लोग मैं हर आदमी को लेकर जाता हूँ, बताता हूँ आओ देखो इनसे मिले, भाई ऐसा काम करो, क्यों नहीं करते? पहले आप कहते हैं मेरी कोठी बने, हम जो पैसे दशाटी के ले जाते हैं, हम खुद खाते, सब कुछ जानते हुए हम चोर बेईमान है, हम चोर बेईमान है, हम खुद खाते, दूसरे को क्या कहते? और क्यों करते हो ऐसा खुदा के लिए? अगर आप कहते हैं ज़कात का पैसा दो, ज़कात का पैसा मैं खाऊं तो राम है, मुझे लगता ही नहीं। शाह जी बताएं, ये जब तक आप मुल्ला के खिलाफ बात नहीं करेंगे, बात नहीं, बात सुनो, जब तक बात नहीं उठाएंगे हक और सच की, अब तक आपकी कामयाबी नहीं होगी। आप दबे रहेंगे, आप दबे हुए हैं, हम दबे हुए हैं। हम नहीं बोल सकते कि मौलवी 2 मिनट के बाद मुझे बाहर जाएगा क्या ध्यान नहीं है, तुम्हें पता नहीं। ये कह देते हैं यार, ये कहते हैं वो राजा साहब, हम जब जुम्मे के दिन मस्जिद को जाते हैं, हमें वो भी नहीं छोड़ेंगे फिर गेट में से? एग्जैक्टली सर, शाह साहब आपको बाहर आना होगा, हक और सच की आवाज़ को बुलंद करना होगा। मेरे भाइयों, आपका आने का बहुत बड़ा शुक्रिया, आपका यंग मैन, बहुत मेरी मेहरबानी कि साहब आप आए। सिर्फ मैं कहता हूँ कि हम 50 लोग ठीक हो जाए ना, हम कहते 500 और ठीक हो जाएगा। अगर हम यहाँ से खा कर जाए तो बाहर कहेंगे अंदर इन्होंने दाल दिया, हमें रोस्टी दिया, नहीं। खुदा के लिए हमें पूरा पाकिस्तान हमारा है। बलूचिस्तान के लिए बैद साहब आप जो करेंगे बैद बलूचिस्तान के अंदर लगे, वाहिद बंदा है पाकिस्तान का, और हमने इनको सरे अव्वल रखा है, सरे फरिश्त रखा हमने, पहले इनको वाई नॉट
وائی ناٹ؟ یہ پوچھے میرے عزیز ابرار سے, وہ اجاز سے پوچھے بلوچستان کے لوگوں نے ہمیں کیسا کتنا ہمیں انہوں نے بھرایا بٹھایا, جگہ گئی, ہم بس اسٹیشنوں پر گئے, سرداروں کے گھر گئے, بازاروں میں گئے, وہ کیا کیا چیزیں لی ہیں چھوٹی موٹی, سمجھیں گے کدھر کدھر, اسمبلی میں رات کو گئے کتنے بجے. ثاقب صاحب جو کام کر رہے نو بڈی کین ڈو اٹ, کوئی نہیں جاتا بلوچستان. کیوں نہیں جاتے آپ یار بلوچستان؟ وائی ناٹ؟ ہمیں آخری بات کہ فرسٹ آف آل آپ دونوں صاحبان کو بہت بہت مبارک, اور وہ لوگ جو بلوچستان گئے تھے میرے پیارے ملک میں, میری پیاری دھرتی پر, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ بھی دے, اور اللہ تعالیٰ بلوچستان کے لوگوں کو اور اس دھرتی کو ہمیشہ کامیاب و کامران رکھے اور پاکستان کا حصہ رکھے. وہاں ہماری بہت ساری یادیں وابستہ ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی راجہ صاحب کا یہ جو انوار مدینہ میں یہ گئے تھے اپنے ثاقب صاحب, یہ میں اور راجہ کئی برس بیٹھ کر سوچتے رہے کہ کچھ کرنا ہے. تو اللہ کے فضل سے ایک وہ خاکہ تیار ہو گیا. تو جب خاکہ تیار ہو گیا, زمین ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, انہوں نے زمین اپنے سے لی, سب کچھ کیا. راجہ ایک بہادر اور سخی آدمی ہے, اس کا جی چاہتا ہے کہ بھلا ہو لوگوں کا. تو پھر مجھے ایک دن کہنے لگا بیٹھ کے, کہتا ہے کہ اب بیرسٹر اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ اسکول ہم نے رکھ لیا. تو ایسے ہی ایک کیفیت تاریخ ہوئی راجہ صاحب کہ میں نے کہا اس کا نام اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ انوار مدینہ ہو. ہمارا تو سب کچھ وہیں سے آتا ہے. ادھر میں ایک مسٹاپ, انوار مدینہ انہوں نے کہا, ان کے بردر لو سیکٹری ایجوکیشن سے پنجاب 2003 میں, تو میں انہوں نے بجایا, میں ان کے پاس گیا, وہاں میں ملا لاہور, ان سے اگلا جو نام ہے ماڈل کالج وہ انہوں نے رکھا. وہ ایجوکیشن میں تھی, انہوں نے دیکھا کہ یہاں کیا چلے گا, تو انہوں نے اس کو انوار مدینہ ماڈل کالج کر دیا. تو بہت دفعہ مجھے راجہ نے کہا کہ یار آنا وہاں, لیکن اس کا ایک سید بادشاہ آ گیا, روکتا ہوں میں اس بات کو. اب سادات آگے ہیں تو بیٹھ کر بات کرنے سے میں اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں, تو اب کھڑے ہو کر اپنی وہ بات پوری کر دیتا ہوں. تو راجہ نے کہا, کئی دفعہ کہا کہ میرے ساتھ چلو اسی مارچ کے مہینے میں جب رزلٹ آتے ہیں دیکھو جا کے کیا بنایا ہے, کیا بنا ہے ہمارا سمر اپنی کار کوششوں کا. تو میں نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں کب آتا ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ اس کیفیت, اس لیے مجھے وہ کیفیت یاد ہے کہ جب میں نے کہا تھا کہ اس کو انوار مدینہ کا نام دیا جائے, تو آپ سب لوگ حیران ہوں گے کہ جب میرے نصیب میں انوار مدینہ ماڈل کالج میں جانے کیا سبب بنا, تو میں مدینہ شریف سے اٹھ کے گیا. اللہ یہ اس قدر روحانی نسبت جو تھی, اور مجھے ایسا معلوم پڑا کہ مدینہ منورہ سے انوار مدینہ تک جو ہمارا سفر ہے, اس کے اوپر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا ہاتھ. اس لیے اس ملک کے اس انوار مدینہ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اللہ کے فضل سے کامیاب ہو کر بہت بڑی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. اور اس کے پیچھے جو ہمارے راجہ صاحب کا اخلاص ہے اور اس کے اوپر جو محنت ہے, مجھے یاد ہے ایک دن میں آیا تو راجہ مجھے کہنے لگا یار, میں نے کہا کیسا جا رہا ہے اسکول؟ مجھے کہتے ہیں اسکول کو ضرورت ہے. تو میں نے اس کی طرف دیکھا, میں نے کہا تو کوئی بات نہیں, وہ پوری ہو جائے گی. وائی ڈو یو ویری, ارے جس کے نام پہ ہم نے یہ اسکول کا نام رکھا ہے وہ جانیں گے اور ان کا کام جانیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیں برکت دی, کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی. اور میں نے اسے کہا تھا کہ تم اپنی خود ہی سے اس کو پورا کر سکتے ہو. اور وہ وقت بھی رہے کہ جب اسے سارے کا سارا فنڈ جو تھا وہ اپنی جیب سے دینے پڑا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں دونوں صاحبان کے دلوں میں ان کی باتیں سن کے مجھے بڑی ایک تقویت ملی. اور جو مجھے سب سے بڑی خوشی ہوئی ہے وہ راجہ کے سوچ میں جو تبدیلی آئی,
और वो तब्दीली एक सर्द शाम पैरागान होटल में इसने लोगों को बुलाया, जिसमें तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग थे, शिया भी थे, सुन्नी भी थे, बरेलवी भी थे, देवबंदी भी थे, अहले हदीस भी थे, और सब लोग थे। तो वहाँ पर सब ने अपनी अपनी तकरीरें की। तो उसके बाद राजा ने मुझे भी इनवाइट कर दिया। तो ये वहाँ पर जो 2 थीम मैंने पेश किए थे वो लोगों को याद होंगे। उसके ऊपर इसकी पूरी तकरीर को सुन के मुझे इंतहाई खुशी हुई। एक वो ये था, सुन लीजिए, वो ये था, थीम था कि पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट था वो उन लोगों के जहन में आया जो यहाँ पढ़कर, यहाँ रह कर गए, अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म मोहम्मद अली। और मैंने वहाँ ये कहा था, जो आप ये बार बार कह रहा है, कि ये यूरोपियन पाकिस्तानियों ने इसका ख्वाब देखा था और इस ख्वाब को यूरोपियन पाकिस्तानी ही पूरा करेंगे। ये हमें करना होगा, ये हमें करना होगा। एंड वी हैव टू गिव ए डायनेमिक लीडरशिप to our country and to our leaders who are absolutely empty in here. They can't think. क्यों? कि पाकिस्तान को सोचने और बनाने वाले यहाँ से गए थे। और दूसरा कॉन्सेप्ट भी सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई। उसी पैरागान होटल में मैंने ये कहा था और दलीलें दे के कहा था कि आज से शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी का मसला ख़त्म हो जाना चाहिए। जब तुम एक दूसरे को मिलो, hello Muslim brother, how are you? Hello Muslim brother, how are you? Hello Muslim brother, how are you? And that should be the spirit. अब इसको राजा ले चले हैं, तो हमारा तो ये लीडर है, हम तो इसको सप्लाई करते हैं वो फिलॉसफी, और ये हमारा लीडर उसको कर देता है। अल्लाह तुझे हमेशा शाद मान रखे कि तू अपने मुशीरों की बात मान लेता है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले जी अपने भाई और अपने बुजुर्ग जिनको मैं डिडियाल इनके घर जाकर एडवांस मुबारकबाद दे रहा हूँ माशाअल्लाह पाकिस्तान में। मैं वहाँ तक पहुँच गया, आप बोलेंगे ठीक है। तो शफीक शाह साहब का लॉर्ड मेयर बर्मिंघम का बनना, मुंतखब होना, ये हमारी कौम के लिए फ़ख्र है, आज़ाज़ है। और मैं पहले कह चुका था, इससे पहले जब पाकिस्तान जाने पहले एक सैयद बादशाह पहली दफ़ा, और नफीस सैयद, वाह सुभान अल्लाह, बेदागा सैयद। हर माजरत हर आदमी पर कोई ना कोई दाग है, कोई माइल का लाल दाग नहीं। तो मैं वो हमारे पास गाँव है जी सुल्फ़ार शाह साहब का घोड़ा था, तमाशा 7 तारीख दुर्मी उत्थे भी मैं भारत तो मैं उन्हें आखा था तुसा ऐसो इंग्लैंड ही, तो मैं इन्हें दावत करता उन्हें वायदा किया रोजन बाप पे आता, ठीक है ना। तो शफीक साहब को और इनके वालिद साहब को बहुत बहुत मेहरबानी, मुबारकबाद हो, और हम सब आपके साथ हैं। शाह साहब मेरा मुख्तसर मैं आगे लेक्चर दे चुका हूँ अपना माशाअल्लाह। 2 बातें मैंने कहा, हमने बलूचिस्तान में ये हमारा जो है ना पूरा कर दिया यहाँ की बात। एक कायदे आज़म ट्रस्ट है शाह साहब हमारा, ये कायदे आज़म ट्रस्ट है, इसमें सब कश्मीरी भी है, पंजाबी भी है, सिंधी भी है, बलोची भी है, पख्तून भी है, पाकिस्तानी भी है, इसमें और कोई नहीं सब। और हमने इसलिए बनाया, इसके अंदर कोई शिया, सुन्नी, वाबी, ये वो कतन नहीं होगा, ना हम किसी को रेकग्नाइज करेंगे, ना हम किसी को अप्रिशिएट करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा सिर्फ मकसद है पाकिस्तानी, और हम अगर इस पर चले तो हम कामयाब। इसके अलावा हमारे मुल्क के अंदर जो अकलीतें हैं जी, हिंदू हैं, जो ईसाई हैं, जो सिख हैं, हम उनके जो मुकद्दस प्लेसेस हैं उन पर भी गए शाह जी, और उनको भी हमने इत्माद में लिया, और उनको हमने बताया हम पाकिस्तानी हैं। हमने सब ये यहाँ पर कार्ड करके लाए, तो हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं। उन्हें आप भी अप्रिशिएट करें कि पाकिस्तानी है, रिगार्डलेस किस मजहब से तल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तानी हैं। और खुदा के लिए हर पाकिस्तानी की सपोर्ट की जाए। और शाह जी आपसे तवक्को है कि आप इस कौम को लीड करेंगे अगला साल, और इंशाल्लाह अच्छे मैसेज ले जाएंगे, इसको नेशनलिज्म पर ले जाएं, लोकल मसाइल से निकालें, आगे लेकर जाएं। मैं आप दरख्वास्त करूँगा अपने बड़े भाई से, शफीक शाह साहब लॉर्ड मेयर बर्मिंघम पर मुंतखब होने के बाद जरा आप अपने ख्यालात का रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे उस्ताद मोहतरम ब्रदर साकिब साहब, बैरिस्टर साहब, राजा इश्तियाक साहब, चौधरी फरीद साहब, और मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।
इससे कबल कि मैं कोई और बात करूं, मैं इंतहाई मशकूर हूं मेरे मोहतरम भाई राजा इश्तियाक साहब का कि जिन्होंने इतनी खूबसूरत इस महफिल का एहतमाम किया और इन्होंने मेरे बारे में काफ़ी बातें की। मैं अपने आप को इस काबिल तो नहीं समझता, पर ये इनका बड़ापन है, इनका एक अपना एक खूबसूरत अंदाज़ बयान है। और मैं आज बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर साकिब साहब यहाँ मौजूद हैं कि जिन्होंने मुझे कुरान पढ़ाना सिखाया। और मुझे अभी भी वक्त याद है कि ये ज़बरदस्ती हमें, जब मैं मस्जिद में जाया करता था तो हमें ये उर्दू पढ़ाया करते थे। तो अब मैं, क्योंकि सियासत से मेरा तल्लक है और पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मेरी काफ़ी इंटरेक्शन रहती है, तो जब भी मैं किसी वक्त किसी फंक्शन में जाता हूँ तो मैं ये ब्रदर साकिब को हमेशा याद करता हूँ कि ये मेरे उस्ताद मोहतरम हैं कि जिन्होंने मुझे उर्दू पढ़ना सिखाया। तो उस वक्त ये काफ़ी सख्ती से, बड़े बल्कि ज़बरदस्ती से मैं उर्दू पढ़ाया करते थे, या साथ साथ ये भी क्या करते थे कि इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको ये काम आएगी। तो मैं आज की इस स्टेज की साथ साथ से ब्रदर साकिब साहब का, मेरे उस्ताद मोहतरम का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने कुछ तकरीबन मेरा 25-30 ईयर्स अगो हो गए, इन्होंने हम इतनी मेहनत से हमें पढ़ाया। ये जो आप राजा साहब ने ये कायद आज़म का ट्रस्ट शुरू किया है, तो मैं समझता हूँ कि हम उस मुल्क में जो रहते हैं, हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है। जैसा कि बैरिस्टर साहब ने कहा कि ये मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क का हिस्सा हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ के पाकिस्तानियों ने इस मुल्क में बड़ी मेहनत की, बड़ी तरक्की की। आज देख रहे हैं कि मुसलमानों में, खासकर पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी यहाँ सक्सेसफुल बिजनेस कम्युनिटी है। और इस मुल्क की इकानमी में हम मुसलमानों का, खासकर पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हर शोबे में हमारे लोग मौजूद हैं। पॉलिटिक्स में देखें तो हम ही में पाकिस्तानियों में से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, लॉर्ड्स में हैं, काउंसलर्स हैं, सब कुछ है। तो एक बात मैं समझता हूँ कि हम इस मुल्क में या दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अगर हमारा कोई वजूद है, कोई हस्ती है, कोई पहचान है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस वतन वजीम की बदौलत है। तो हमें भी चाहिए कि जब हम यहाँ की कोई बात करें तो हमें पाकिस्तान के बारे में भी सोचना चाहिए। और आज कल जो पाकिस्तान के हालात हैं वो आपके सामने हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी, फिरका वारीद की गिरफ्त में है। और जैसा कि मैं इंतहाई मशकूर हूँ राजा इश्तियाक साहब का कि जिन्होंने 1-2 महीना कबल एक ऐसी कॉन्फ्रेंस की जिन्होंने तमाम मुसलमान, तमाम फिरकों के लोगों को बुलाया। तो होना भी इसी तरह चाहिए, क्योंकि अगर एक कौम होकर चलना है तो ये हमारे जो अपने छोटे छोटे मसाइल हो, इनको एक साइड रखकर सबसे पहले हमारा अपना मजहब होना चाहिए, उसके बाद हमारा वतन पाकिस्तान की हमें सोचनी चाहिए। तो राय साहब का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने ये स्टेप्स उठाया है। तो पाकिस्तान जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। तो एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि पाकिस्तान के हालात भी इतने हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जिससे बात करो तो वो इस्लाम की बात करता है, हर कोई इस्लाम की बात करता है। तो अगर हम सबका मिशन एक है, सबका मिशन इस्लाम है, तो ये पाकिस्तानियों में इतनी आपस में ये नफरतें क्यों? तो एक बात मैं पूरे यकीन बल्कि पूरे दावे से कहने जा रहा हूँ कि ये जितना भी ज़वाल आपको नजर आ, ये सिर्फ और सिर्फ पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से दूरी का नतीजा है। अगर आज भी उम्मत मुसलमान इस फिक्रे पर गौर करे तो खुद ब खुद हर सवाल का जवाब मिल जाएगा कि की मोहम्मद से वफातून वो हम तेरे, ये जहाँ चीज़ है क्या लोग ये कलम तेरे। एक बार फिर मैं राजा साहब का और इनके तमाम साथियों का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे आज इस महफिल में बुलाया और आप सबसे मिलने का मौका दिया। लॉर्ड मेयर साहब हमारे साकिब साहब के शागिर्द हैं, पर मुझे थोड़ा सा इतना याद है कि साकिब साहब हर आदमी को कहते बलोचिस्तान चलो, बलोचिस्तान जाने के लिए कोई तैयार नहीं था, आखिर हम ही जेल के साथ बलोचिस्तान। ये बात आप मेहमानों का शुक्रिया अदा करें, बलोचिस्तान से आपके तल्लक है, हम बलोचिस्तान गए जी। साकिब साहब सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। मैंने राजा साहब को कहा कि मैं लेट आऊँगा, मैं ज़रा एक मीटिंग में था कॉवेंट्री में। जब साकिब साहब जा रहे थे पाकिस्तान तो मैंने राजा साहब से इनकी मुलाकात कराई कि मैंने कहा ये पहले से जानते हैं, तो यहाँ पे एक इवेंट हुआ था 23 मार्च में,
उसमें जिक्र हुआ कि पाकिस्तान जाना है, तो राजा साहब ने मुझे कहा कि क्या ख्याल है आपका पाकिस्तान जाने का। मैंने कहा ज़रूर जाएं। तो 10 में से एक आदमी ने कहा कि आप जाएं, 9 लोगों ने कहा कि आप ना जाएं, 10 में से एक आदमी मैं था। मैंने कहा जो भी कोई काम है कि आप वहाँ जाएं तो आपको पता चले कि बलूचिस्तान क्या है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अक्सर लोगों को बलूचिस्तान के बारे में नहीं पता, और मैं बारहा यह कह चुका हूँ कि अगर मैनेजमेंट अच्छी हो और करप्शन ख़त्म हो जाए, सिर्फ वाहिद बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान का कर्जा भी अदा करेगा, जितने भी हमारे नेबर्स हैं उनको भी कर्जा देगा, और पाकिस्तान जो है ना वो डेवलप्ड कंट्रीज में आ जाएगा। इसी तरह सिंध में जो अभी कोल माइंस के निकले हैं, उससे बिजली जो है ना 5 सदियों तक बन सकती है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 से 5 सदियों तक, और वो भी 50,000 मेगावाट जो है ना बिजली बन सकती है। तो सोचिए कि पाकिस्तान कितना अमीर है। बलूचिस्तान में जो कॉपर और गोल्ड के माइंस है, जिप्सम है, क्रोमाइट है, कोल है वहाँ पे। पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जो कोल जो इस्तेमाल करता है वो 3% इस्तेमाल करता है। US चाइना 40-30% इस्तेमाल करता है उसके, और हम लोग कुछ नहीं इस्तेमाल करते। तो ये मायूसी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान अमीर है, पाकिस्तान के लोग गरीब हैं, लेकिन मैनेजमेंट जो है ना वो गरीब नहीं है। तीसरी बात मैं ये कहूँगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2008 के एक रिपोर्ट आई थी, स्विस बैंक में पाकिस्तान के $97 बिलियन थे जो अनडिक्लेयर्ड थे। आज की तारीख में वो $200 बिलियन हैं। किसके पैसे हैं? ये वही उसी आवाम के पैसे हैं जो यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। अगर यही पैसे आवाम पे खर्च किए जाएं, मुल्क पे खर्च किए जाएं, तो ये कौम कितनी तरक्की कर सकती है। मैं सिर्फ एक और बात कहूँगा कि 1947 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी टीम ने, बहुत छोटी सी टीम थी, पूरी कौम को इकट्ठा करके एक मुल्क बनाया। वो कौम इकट्ठी हुई एक पॉइंट पे। आज मुल्क है, कौम नहीं है, तो एक पॉइंट पे इकट्ठा होना चाहिए। जैसे राजा साहब ने कहा और बाकी मुकर्रीन ने कहा कि यहाँ पे कोई पंजाबी नहीं, कोई सिंधी नहीं। अगर हम एक कौम, एक टीम हो के काम करें तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। राजा साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। साकिब साहब की एक बात मुझे याद है कि एक और एक करके काम करेंगे तो हम सब अकेले रहेंगे, अगर इकट्ठे काम करके करेंगे तो हम 1 से 2, 2 से 3 इस तरह बढ़ते जाएंगे। तो आप सबसे ये मैं गुजारिश करूँगा कि आप सब मिल कर के हमारे साथ इस कॉज में आप आगे आएँ, और बेलौस मदद चाहिए। हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं चाहिए, आपका इखलास चाहिए, आपकी मदद चाहिए, कोई माली मदद नहीं चाहिए। जब अब कौम इकट्ठी होगी तो माल खुद ब खुद अल्लाह ताला हमें दे देगा। बहुत बहुत शुक्रिया।